society, पीछे हम गड़ी में बोल रहे the हैं job is very ये limited. डल रहा है But the people or the students who are searching for job, they are huge in numbers. How to satisfy them? We have to think certain new things. The new area is skill. People say that there is no job. I say there is a lot of job in the society if you have the proper skill. Because this is not the time only for the education, but it's the time for skill also. So you have to add the feather of skill within your personality, then only you can grow fast. Now, the another name of this skill development goes to entrepreneurship. That means instead for searching a job, not only this, we make ourselves employed, but we also employ some of the other students also. So definitely this is a very good vision by which we are coming across. Now, the next is the safeguard the cultural heritage of our country. Since we all know we are country, we belong to a country of which is India, which is very rich in art and culture. Even the Western countries, to our next generation, we should preserve the culture of India in our country. Seventh vision will be the complete economic growth. That means we want to, we make a vision that we go for a complete development, that is through entrepreneurship, through rural development, as well as the participation of the women. Because in our country, mostly the women are not in the forefront. But nowadays, with our vision, we want to take the women of our women section of our country at a front foot. Next is the digital empowerment. That means whatever we do, we want to connect it to. Another point, the ninth point is urban-rural integration, because in the culture of urban society and the rural culture, there is a lot of gap and differences. This we propose to fill it up, since our college is surrounded by so many villages. In this place, we can very well explore on this particular point. And the last, not the least, is the global leadership in sciences and education. Through this, we want to take our country to become a global leader. With these lines, I close to the point, and finally, I thank my young friend, Mr. Sumit Sangwan, and his complete team, who has very beautifully written all the points and brought it in the form of a booklet. And at the same time, I thank all of you for your patience hearing for this small speech. Thank you. थैंक यू सो मच सर। अब हम अवार्ड फैसिलिटेशन प्रोग्राम की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपके साथ में सिर्फ 2 मिनट के कुछ वर्ड्स ऐसे रखने चाहते हैं ताकि आपके सामने इस पूरे प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए, और वो मेमोरियल वर्ड्स हैं। अब आज JBIT के सम्मान में और ये जो डॉक्टर्स की टीम है, इनके सम्मान में 2 शब्द मैं आपके साथ में रखना चाहता हूँ। तो पहली लाइन मेरी आती है इस संस्थान के फाउंडर की तरफ से कि जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हम, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। उनका दिया हुआ जज्बा की ज्ञान हमारे सीने में महफूज है और हमेशा रहेगी। जब कोविड-19 की वैक्सीन बनी, इंडिया ने इन्वेंट किया, इंडिया के डॉक्टर्स ने किया, और पूरे वर्ल्ड के लोग उस पर अपना लेबल लगाने आ गए। चाइना ने भी इसमें, आप तो जानते हैं कि फर्स्ट हो जाता है किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो डॉक्टर्स की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जो तौर है दुनिया का, उस तौर से बोलो, और बहरों का जमाना है, जरा जोर से बोलो। ये वो शब्द हैं
जो ये आइडेंटिटी हिंदुस्तान की बताना चाहते हैं कि वी आर द फर्स्ट टू सर्व द ह्यूमैनिटी, वी आर द फर्स्ट टू सर्व द मैनकाइंड। और जब ये ट्रेडिशन चल गया इनोवेशन का, हर चीज की पहल हिंदुस्तान से हुई है, जीरो से लेकर आप किसी भी बायोलॉजिकल, केमिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी बुनियाद को देख लें, उसकी बुनियाद इस इंडिया में ही रखी गई है। और जब अंधेरे चारों ओर साएं साएं करने लगे और चिराग हाथ उठाकर धुआएं करने लगे, जब अंधेरे चारों ओर साएं साएं करने लगे और चिराग हाथ उठाकर धुआएं करने लगे और चलने का तरीका जिनको सिखाया था हमने, आज वो लोग हमें दाएं बाएं करने लगे। अब फिर से 2 लाइन फाउंडर चेयरमैन सर की तरफ से और 2 लाइन मंजूर होनी चाहिए। फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है जिनकी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते, फाउंडर चेयरमैन सर सिविल इंजीनियर थे, और कट चुकी है जिनकी सारी उम्र पत्थर तोड़ते तोड़ते, अब तो उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। अब जो JVIT के स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, ये उनको क्या जवाब देते हैं? उनकी डिसअपियरेंस में ये JVIT क्या जवाब देता है कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी भी चाहिए। ए खुदा, मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए। और मैंने अपने कुछ आंखों से कुछ लहू झलका दिया, एक समुद्र कह रहा था मुझसे पानी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी है JVIT की। इस मौके पर जो इंडिया @2047 पर हम एक ट्रीटीज को रिलीज करने जा रही है, मैं आप लोगों के सामने एक बात एड्रेस करना चाहता हूं कि आला तालीमी तरबियत के मुसन्निफ और इस बुक के राइटर सुमित सांगवान सर ने इस बुक को लिखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किशोर भट्ट सर से कि इस बुक के विमोचन के लिए इस बुक को पूरी टीम प्रीति आनंद में, डॉक्टर स्वाति त्रिपाठी, सुमित सांगवान सर, किशोर भट्ट सर, ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर के सामने रखें। और ये जो आज बुक हम रिलीज करने जा रहे हैं, ये किसी एक और सियाही से नहीं लिखी गई। इसके लिए 2 लाइन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मताए लोहे कलम छिन गई तो क्या गम है, मताए लोहे कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। ये ऑथर कहता है इस बुक के लिए। और आज जिस भारत की नींव रखी जा रही है, इस बुक के विमोचन के साथ ये यकीनन एक काबिल तारीफ और ऐतिहासिक पल है कि जब इंडिया बनेगा विकसित भारत अभियान के साथ होगा पूरा JVIT। और आप जानते ही हैं कि परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंच जाता है, और हमारा तीर, ये JVIT का तीर अपने निशाने तक पहुंच जाता है। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार तालियों के साथ उनकी डिग्री के लिए अवार्ड है उनका ऑनर किया जाए। और साथ ही बैनुल अक़वामी शौकत याफ्ता शख्सियत एक मुसन्निफ सुमित सांगवान सर को भी इस बुक की एक कॉपी रिप्रेजेंट की जाए बाय द गुड हैंड ऑफ ऑनरेबल चीफ गेस्ट। प्रोग्राम में अवार्ड फैसिलिटेशन बहुत ज़्यादा हमारे सामने बड़ी लिस्ट है, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड नोट भी करेंगे। एक्चुअल में जो स्टूडेंट ये इंडिया का जो विकसित भारत अभियान का मिशन है, इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेज को डिसाइड किया है। और इस प्लेज का मतलब है कि सभी जो भारतवासी हैं उस शपथ को ग्रहण करेंगे और उस शपथ को ग्रहण करने के बाद इस मिशन पर काम करेंगे। और आज इस JVIT के प्लेटफॉर्म से ये कारवां शुरू होने जा रहा है, इस चीज की बुनियाद रखी जा रही है। तो आज इस डेवलपमेंट की संगे बुनियाद रखने के लिए आज की ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रावत मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ओथ के साथ
हमें ब्लेसिंग्स दें और विकसित भारत अभियान की एक नींव जेबीआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में रखें। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ गेस्ट में प्रोफेसर डॉक्टर अनीता रफत से। गेट से पीछे आउटिंग नहीं दे रहा, वहाँ जाकर आप सबको आज जेबीआईटी के इस प्रांगण में फाउंडर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना के साथ कि जिस विजन और मिशन को लेकर स्वर्गीय एलवी सिंघल साहब ने जो सपना देखा था, जिस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक संस्था की स्थापना की और ये संस्था इस प्रकार से समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए, इस सबको आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर हम सब उन ऑफशूट्स को, उन सब सपोर्टिंग हैंड्स को, उन सब सपोर्टिंग माइंड्स को एक शक्ति दे और एक ताकत दे कि उनके विजन को हम एक विशिष्ट पहचान के रूप में समाज में स्थापित कर सकें। आज मुझे ये दायित्व दिया गया है कि सर्वप्रथम मैं इस प्लेज के साथ उस सपने को जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उस विचार का, सपने का जो बीज हम सबके मन में अंकुरित किया है कि किस प्रकार से हमको 2047 तक अपने आप को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो उस जिम्मेदारी की आज इस प्लेज के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि किसी भी प्लेज को लेने के लिए हम सबको अपने मन के भाव, अपने शरीर के भाव, अपने आत्मा के भाव और अपने मस्तिष्क के भाव The JBIT Assembly pledge to me India developed and self-reliant nation by 2047. Remove any trace of colonial mindset, celebrate our heritage, strengthen unity and respect those who protect the country, perform the duties of a citizen. Jai. आप लोग नमस्कार। सामाजिक सरोकारों के पैरोकार जिनके अंदर वो करुणा, वो पैशन हम सबको दिखाई देता है। हमारी विशिष्ट डॉक्टर्स की टीम जो अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से आज इस पुण्य कार्य में जेबीआईटी ग्रुप के प्रांगण में उपस्थित है। जेबीआईटी ग्रुप की चेयरपर्सन मिसेस सिंह, वाइस चेयरपर्सन श्री संदीप जी, रजत जी, समस्त परिवार, इस संस्था के वो हाथ जो इस संस्था को आगे बढ़ाने में जी जान से अपना सहयोग देते हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे सब तमाम फैकल्टीज आसपास के इस समाज के हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे ग्राम प्रधान और प्यारे बच्चों, आप सबको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये हमारे लिए एक सौभाग्य का एक दिन है कि आज जेबीआईटी के इस प्रांगण में हम सब अपने अपने स्तर पर इस वृक्ष को
मजबूती प्रदान करने के लिए, इस वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना मनोयोग और अपनी अपनी जो भी हमारे अंदर विशिष्ट क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटीज हैं, हमारा जो भी पोटेंशियल है, उसके सहयोग से इसे आगे बढ़ाने में हम सब अपना एक सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। मैं आभार प्रकट करती हूँ JBIT परिवार का, जिन्होंने मुझे भी इस अद्भुत और अविस्मरणीय दिवस का साक्षी होने का एक अवसर दिया। विश्वास मानिए कि आज आपके साथ इतना समय व्यतीत करने के बाद आज भी उतनी ही ऊर्जा महसूस हो रही है जितनी मुझे पहली बार महसूस हुई LD सिंघल साहब से मिलने पर। सिंघल साहब, मैं अक्सर उनसे कहती कि ये मेरा अपना संस्थान है। सिंघल साहब मेरे एक बड़े भाई की तरह थे। जब मैं उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में थी तो बेधड़क मेरे कमरे में आते थे और कहते थे, हाँ जी आज हम सब मिलकर आज ये काम करना है। तो उनका कुछ अपनापन था और जो उनका विजन था, कोरोना के समय भी मैंने प्रत्यक्ष गवाह हैं, मैं उनसे कई बार रिक्वेस्ट करती थी कि सिंघल साहब घर में बैठिए, कोरोना के समय भी काम अपनी पेस से होंगे, आप जबरदस्ती आप रिस्क मत उठाइए। लेकिन एक चीज जो आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जिस इंटीग्रिटी के साथ, जिस कंपैशन के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस विजन के साथ और जितने बड़े दिल से वो काम करते थे, उसी का मुझे लगता है कि ये प्रतिफल है कि आज उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शक के रूप में हमारा मार्ग प्रशस्त किया JBIT, उनकी भावनाओं के अनुरूप बहुत अच्छे से अपनी उन्नति की तरफ, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं आप पूरी प्रबंधन कमेटी को, फैकल्टीज को और स्टूडेंट्स को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि उनके जो बताए हुए मार्ग थे, उनका विजन बहुत बड़ा एक विजन था। किस तरह से उन्होंने इस एरिया में आके उन्होंने ये थॉट उनके अंदर आया। वो मुझसे कई बार उसकी जिक्र होता था, मुझसे कहते थे कि मैडम मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने बहुत इमारतों का निर्माण किया, लेकिन इस सामाजिक जीवन में मैं उन भविष्य का निर्माण करना चाहता हूँ जिसका सपना अंदर से हम सब देखते हैं कि हम एक विकसित भारत के रूप में अपने को स्थापित कर सकें। और गर्व, मुझे आज बहुत गर्व महसूस होता है कि उनकी दी हुई जो शिक्षा थी, उन्होंने जो जिस कल्चर से इस सिस्टम को चलाया, सिस्टम को पैदा किया, वो आज आपकी फैकल्टीज में दिखाई देता है, आपके मैनेजमेंट में दिखाई देता है, वो आपके स्टूडेंट्स में दिखाई देता है। तो उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को भी मैं मन से प्रणाम करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में भी निरंतर हम उस मार्ग पे और तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसके साथ साथ अपने मूल्यों से समझौता किए हुए बिना। जिन मूल्यों की वो बात करते थे, जिन सिद्धांतों की वो बात करते थे, उन सिद्धांतों को अपनाते हुए किस प्रकार से हम इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इस टेक्नोलॉजी के परिवेश में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, इस प्रण के साथ पुनः आप सबको हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका अभिनंदन। JBIT आज एक ऐतिहासिक दिन है।